See, journal entry related to this problem. Journal entry, same as it is we prepare here, column, date column, particular column, LF, debit amount and credit amount. Okay, in a date column always we write date when that partner is admitted. Here partner admitted on 1st April 2019. That's why here all date is what? 1st April 2019. First entry here we recorded there is no any general reserve balance. That's why first entry when new partner bring capital. Then entry is cash or bank account debit. Cash or bank account debit to Mangesh capital account. Amount rupees 1 lakh. Okay. He bought capital by RTGS. Then second one entry is what? When new partner bring goodwill. Then entry is bank account debit to goodwill account 40,000. Then that goodwill distributed in a sacrifice ratio, but the old partner decided that sacrifice ratio is what? Equally. So here entry is what? Goodwill account debit to Makaran capital account to Mangesh capital account. Understood everybody? First three entries. First entry related to capital when new partner bring capital. Second entry partner bring goodwill, and third that goodwill distributed to old partners in their sacrifice ratio. The next entry is what? Half of the amount retained in the business. Okay, means half amount withdrawn by partner and half amount retained in the business. इसका मतलब क्या होता है? उन्होंने half amount retain की business में और बाकी half amount क्या होगी फिर withdrawn की. तो withdrawn की entry हमारे लिए क्या है? तो withdrawn की entry है मकरन कैपिटल अकाउंट डेबिट महेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. सबको समझ में आ रहा है? यहाँ पे उन्होंने उनका कहने का मतलब क्या है? सिर्फ हाफ अमाउंट उन्होंने रिटर्न की, मतलब हाफ अमाउंट विड्रॉन बाय पार्टनर. दैट्स वाई एंट्री क्या होगी उसकी? हाफ अमाउंट की, मतलब 20,000 की मकरन कैपिटल अकाउंट डेबिट महेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. ये थी ये गुडविल ट्रीटमेंट रिलेटेड एंट्रीज. देन देखते हैं एज पर आवर सेकेंड एडजस्टमेंट एंट्रीज क्या क्या थी. एज पर आवर सेकेंड एडजस्टमेंट एंट्रीज क्या क्या थी, तो फर्स्ट एंट्री दिख रही है यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट. Revaluation account debit rupees 12,000 to plant and machinery rupees 12,000. अभी ये क्या है? Because in your problem they give one revaluation amount, new revaluation amount is what? 48,000, and last one value is the 60,000. So here assets value decreases. Then the general entry is what? Revaluation account debit to plant and machinery account rupees 12,000. Understood everybody? Narration I'll write here. Being plant and machinery revalued, same date यहाँ पे होगी. नेक्स्ट वन थी बिल्डिंग रिलेटेड. देखो बिल्डिंग की हमें यहाँ पे 2 एंट्रीज करनी होगी. ओके, बिकॉज हमारी ओल्ड बिल्डिंग की वैल्यू थी 72,000, बट न्यू दैट पर्टिकुलर पार्टनर टेकन एट रुपीज 1 लाख. सो रिमेनिंग अमाउंट इज इंक्रीजेस ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट्स. दैट्स वाई उसकी भी एंट्री करनी होगी. तो एंट्री क्या होगी? पहले पार्टनर्स ने कोई एसेट ली तो उसकी एंट्री होती है. यहाँ पे की है मकरन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट. यहाँ पे फोकस करो स्टूडेंट, तो ही आपको दिखेगा. आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया ये, स्क्रीनशॉट करके निकालो इसे. मकरन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट रुपीज 1 लाख. बिल्डिंग टेकन बाय मकरन. Then second entry is what? That asset value increases. That's why we recorded revaluation account credit side. तो एंट्री क्या होगी? मतलब प्रॉफिट हो गया तो एंट्री होगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट रुपीज 28,000. 28,000 कैसे आए? 1 लाख में से 72,000 माइनस किए, यहाँ पे 28,000 आ रहे हैं. द नेक्स्ट वन आरडीडी रिलेटेड जनरल एंट्री करनी है. तो आरडीडी रिलेटेड रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आरडीडी अकाउंट 2,000. 2,000 कैसे? 4,000 रियल आरडीडी है, उसकी प्रोविजन की है 2,000 की, तो 4,000 माइनस 2,000 आंसर इज व्हाट? 2,000. नेक्स्ट ये है लास्ट वन एंट्री आपको जो दिख रही है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के साइड में हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो उसकी एंट्री है. यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हमें क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है. तो प्रॉफिट की एंट्री क्या? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 14,000 टू मकरन कैपिटल 8,400 टू महेश कैपिटल 5,600. दैट अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो ओनली. जो भी होगा प्रॉफिट होगा वो लॉस होगा वो अमाउंट हमें किस में? ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करनी है. अंडरस्टूड एवरीबॉडी?
ओके, ये थी जनरल एंट्री। ये जितनी भी जनरल एंट्रीज है उसके स्क्रीनशॉट निकालो और आपके नोटबुक में नोट डाउन करो। ओके, मैं पूरा प्रॉब्लम फिर से दिखाती हूँ। सबकी स्क्रीनशॉट निकालनी और आपके नोटबुक में नोट डाउन करने हैं। रिवैल्यूएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल आपके टेक्स्ट बुक में है तो उसकी स्क्रीनशॉट निकालने की ज़रूरत नहीं है। पार्टनर्स कैपिटल भी है। कैश और बैंक का स्क्रीनशॉट निकालो, कैश और बैंक अकाउंट एंड गुडविल अकाउंट। बैलेंस शीट स्क्रीनशॉट। नोटबुक में कंपल्सरी नोट डाउन करना है। जनरल एंट्रीज, ओके।